تصور کریں، برف سے ڈھکے پہاڑ، ہزاروں سپاہی اور ان کے درمیان جنگی ہاتھی۔ سردی اتنی شدید کہ سانسیں جم جائیں، راستہ ایسا کہ قدم پھسل جائے، اور سامنے وہ طاقت جسے دنیا ناقابل شکست سمجھتی تھی، روم۔ لیکن ایک شخص تھا جس نے فیصلہ کیا کہ وہ روم کو اس کے اپنے غرور میں چیلنج کرے گا۔ وہ تھا ہنیبال۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکوز آف ہسٹری، جہاں تاریخ کی باز گشت آج بھی سنائی دیتی ہے۔ 247 قبل مسیح، شمالی افریقہ کے ساحل پر آباد عظیم تجارتی شہر کارتھیج۔ یہ کوئی عام شہر نہیں تھا، یہ سمندری تجارت کا بادشاہ تھا۔ دولت، جہاز، فوج اور طاقت، سب کچھ اس کے پاس تھا، مگر ایک دشمن تھا جو اس کے غرور کو چیلنج کر رہا تھا، روم۔ اس کارتھیج میں ایک بچہ پیدا ہوا، ہنیبال۔ وہ عام خاندان میں پیدا نہیں ہوا تھا، وہ برکا خاندان کا بیٹا تھا، ایک جنگی خاندان۔ اس کے والد ہملکار برکا روم کے خلاف پہلی پونی جنگ میں لڑ چکے تھے۔ انہوں نے شکست دیکھی تھی، انہوں نے اپنے شہر کی بے عزتی دیکھی تھی، اور وہ جانتے تھے یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن جب ہنیبال محض 9 سال کا تھا، اس کے والد اسے ایک مقدس قربان گاہ کے سامنے لے گئے۔ فضا سنجیدہ تھی، آگ جل رہی تھی، خداؤں کے نام پر رسم ادا کی جا رہی تھی، اور پھر اس بچے کو کہا گیا، قسم کھاؤ، قسم کہ تم زندگی بھر روم کے دشمن رہو گے، قسم کہ تم اس طاقت کو کبھی معاف نہیں کرو گے جس نے کارتھیج کو جھکایا۔ ہنیبال نے ہاتھ اٹھایا، اور اس لمحے ایک بچے کا دل ایک سپاہی میں بدل گیا۔ یہ صرف جذباتی لمحہ نہیں تھا، یہ ایک ذہنی تشکیل تھی۔ اس دن اس کے اندر نفرت نہیں، مقصد پیدا ہوا۔ وہ کھیل کے میدانوں میں نہیں پلا، وہ فوجی کیمپوں میں پلا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، تلواروں کی چمک اور جنگی نقشوں کے درمیان اس کی پرورش ہوئی۔ وہ کم عمری میں ہی سپاہیوں کے ساتھ اسپین گیا، جہاں اس کے والد روم کے خلاف اپنی طاقت دوبارہ قائم کر رہے تھے۔ وہیں اس نے جنگ کو قریب سے دیکھا، خون، حکمت عملی، اتحاد اور دھوکہ۔ یہ بچپن نہیں تھا، یہ تربیت تھی۔ اور آہستہ آہستہ وہ لڑکا جو قربان گاہ کے سامنے کھڑا تھا، ایک ایسا ذہن بننے لگا جو دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کو چیلنج کرنے والا تھا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ صرف ایک جذباتی قسم نہیں تھی، یہ ایک مشن تھا، ایک زندگی کا مقصد، اور وہ مقصد تھا روم کو جھکانا۔ وقت گزرا، اور وہ بچہ جو قربان گاہ کے سامنے قسم کھا چکا تھا اب جوان ہو چکا تھا۔ 219 قبل مسیح، ہنیبال نے فوج کی کمان سنبھالی۔ اس وقت کارتھیج کی طاقت کا مرکز شمالی افریقہ نہیں بلکہ ہسپانیہ تھا، آج کا اسپین۔ وہاں اس کے خاندان نے نئی طاقت کھڑی کی تھی۔ ہنیبال نے سب سے پہلے اپنی بنیاد مضبوط کی۔ اس نے ہسپانیہ کے قبائل کو زیر کیا، باغیوں کو کچلا، اور ایک ایسی فوج تیار کی جو صرف تعداد میں نہیں، حوصلے اور تربیت میں بھی غیر معمولی تھی۔ افریقی پیادہ فوج، ہسپانوی تلوار باز، نیومیڈین گھڑ سوار اور جنگی ہاتھی، ایک متنوع مگر منظم طاقت۔ مگر اس کے ذہن میں صرف توسیع نہیں تھی، وہ جانتا تھا اگر روم کو شکست دینی ہے تو سیدھا حملہ خودکشی ہوگا۔ روم سمندر پر طاقتور تھا، روم کے پاس وسائل تھے، روم کے پاس اتحادی تھے۔ تو ہنیبال نے وہ سوچا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، روم پر وہیں سے وار کرو جہاں وہ خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ اور پھر تاریخ کا سب سے جرأت مندانہ فوجی فیصلہ کیا گیا۔ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا، ہم اٹلی جائیں گے، مگر سمندر کے راستے نہیں بلکہ زمین کے راستے، دشوار گزار، ناممکن، برف پوش راستے سے۔ وہ روانہ ہوا، تقریباً 90,000 پیادہ سپاہیوں، 12,000 گھڑ سواروں اور درجنوں جنگی ہاتھیوں کے ساتھ۔ انہوں نے دریا عبور کیے، دشمن قبائل کا سامنا کیا، بھوک، بیماری اور بغاوت کو برداشت کیا، اور پھر وہ لمحہ آیا،
सामने खड़े थे यूरोप के देव कामत पहाड़ एल्प्स बर्फ से ढके, हवा से लरजते, खतरनाक दर्रों से भरपूर। ये वो रास्ता था जिसे अबूर करना आज भी आसान नहीं, मगर हनीबाल ने फैसला किया यही रास्ता हमें रोम के दिल तक ले जाएगा। सर्दी हड्डियों को काट रही थी, सिपाही फिसलकर खाइयों में गिरते रहे, रास्ते तंग थे, बर्फानी तूफानों ने लश्कर को चीर कर रख दिया, हजारों सिपाही मारे गए, घोड़े मर गए, बहुत से हाथी बर्फ में जम गए, हर कदम मौत के दिहाने पर रखा जा रहा था, मगर जो बच गए वो लोहे से भी ज्यादा सख्त हो चुके थे। जब हनीबाल की बाकी मांदा फौज एल्प से उतरकर शुमाली इटली पहुंची तो रोम को यकीन ही न आया। वो दुश्मन जिसे वो समुंदर में रोकने की तैयारी कर रहा था अचानक इसके दरवाजे पर खड़ा था। ये सिर्फ एक फौज नहीं थी, ये एक तूफान था, एक ऐसा तूफान जो पहाड़ों को चीर कर आया था। और अब इटली की जमीन पर तारीख का सबसे खतरनाक खेल शुरू होने वाला था। ये सिर्फ फौजी मार्च नहीं था, ये नक्शों पर बनी हुई एक लकीर नहीं थी, ये इंसानी हौसले की आखिरी हद थी। हर कदम आजमाइश था, हर सांस जद्दोजहद थी। बर्फानी हवाएं चेहरे काट रही थी, पेट भूख से मुड़ रहे थे, पांव जख्मी थे, कपड़े फट चुके थे। रास्ते में घात लगाए दुश्मन कबाइल पहाड़ों की बुलंदियों से पत्थर बरसाते, तीर चलाते और कमजोर सिपाहियों को खत्म करते जाते। सिपाही सिर्फ दुश्मन से नहीं लड़ रहे थे, वो कुदरत से लड़ रहे थे, सर्दी से, ऊंचाई से, मायूसी से। कई रातें ऐसी आईं जब आग जलाने को लकड़ी न थी, कई सुबहें ऐसी हुई जब लश्कर की सफ़ें पहले से छोटी हो चुकी थी, मगर एक चीज कम ना हुई, हनीबाल का अज़्म। इसकी आंखों में वही चमक थी जो बचपन में कसम खाते वक्त थी, वही आग जो कुर्बान गाह के सामने जलाई गई थी। वो जानता था ये तकलीफ आर्जी है, मगर अब वो कामयाब हो गया तो रोम की तारीख हमेशा के लिए बदल जाएगी। जब आखिरकार थकी हारी मगर फौलादी इरादों वाली फौज एल्प्स की बुलंदियों से उतरकर इटली की सरजमीन पर पहुंची तो ये सिर्फ एक जोग्राफियाई कामयाबी नहीं थी, ये नफ्सियाती हमला था। रोम को यकीन नहीं आया, उनके जासूस गलत साबित हुए, इनके जर्नैल हैरान रह गए। वो दुश्मन जिसे वो दूर समझ रहे थे अचानक इनके दरवाजे पर खड़ा था। और अब ये सिर्फ जंग नहीं रही थी, ये गरूर और इरादे की टक्कर थी। रोम ने कभी सोचा भी न था कि कोई दुश्मन पहाड़ों को चीर कर इनके दिल तक पहुंच सकता है, मगर हनीबाल पहुंच चुका था। 216 कबले मसीह इटली का मैदान बैटल ऑफ कैनाए, सूरज तलू हो चुका था, मगर इस दिन रोशनी उम्मीद नहीं खून की सुर्खी लेकर आई थी। एक तरफ थी रोम की ताकत, तकरीबन 80,000 सिपाही, तजुर्बाकार, लेजेंड्स, भारी हथियार और यकीन कि आज वो हनीबाल को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ खड़ा था हनीबाल। इसकी फौज तादाद में कम थी, तकरीबन 50,000 के करीब, मगर उनके पास एक हथियार था जो तादाद से ज्यादा खतरनाक था, हिकमत अमली। रोमी जर्नैलों का मंसूबा सादा था, अपनी भारी फौज को सीधा आगे बढ़ाओ, दुश्मन को कुचल दो। मगर हनीबाल सादा जंग नहीं लड़ता था, इसने अपनी फौज को एक अजीब तरतीब में खड़ा किया। दरमियान में निस्बतन कमजोर सिपाही, हस्पानवी और गाल जंगजू, और दोनों किनारों पर मजबूत अफ्रीकी दस्ते, घड़सवार। फौज अतराफ में तैयार खड़ी थी। जंग शुरू हुई, रोमी फौज दीवार की तरह आगे बढ़ी। इन्होंने हनीबाल के मरकज पर दबाव डाला, दरमियानी हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा, मगर ये भागना नहीं था, ये मंसूबा था। रोमी सिपाही समझ रहे थे कि दुश्मन टूट रहा है। वो मजीद अंदर घुसते गए, मजीद आगे बढ़ते गए, मगर वो दरअसल एक जाल में दाखिल हो रहे थे। हनीबाल का दरमियानी हिस्सा हलाल की शक्ल इख्तियार करता गया, अंदर की तरफ झुकता हुआ, और फिर वो लम्हा आया जिसने तारीख बदल दी। दोनों अतराफ खड़ी अफ्रीकी फौज अचानक अंदर की तरफ मुड़ी और रोमी लश्कर के पहलुओं पर टूट पड़ी। इसी वक्त हनीबाल की घड़सवार फौज रोमी घड़सवारों को शिकस्त देकर पीछे से वापस आई और रोमी फौज के अकब पर हमला कर दिया। अब रोमी लश्कर चारों तरफ से घिरा हुआ था, सामने दुश्मन, दाएं दुश्मन, बाएं दुश्मन, पीछे दुश्मन। इतनी बड़ी फौज
अपनी ही तादाद के बोझ तले दब गई। सिपाही हरकत न कर सकते थे, तलवार चलाने की जगह नहीं थी, सांस लेना मुश्किल हो गया। ये कत्ले आम था। घंटों तक रोमी सिपाही एक एक करके गिरते रहे। कहा जाता है कि तकरीबन 50 से 70 हजार रोमी मारे गए। एक ही दिन में मैदान लाशों से भर गया था। दरियाए आफिडस के किनारे खून बह रहा था। दुनिया ने पहली बार देखा कि रोम नाकाबिल शिकस्त नहीं है। ये सिर्फ एक जंगी फतेह नहीं थी, ये जहानत की फतेह थी। ये इस बात का ऐलान था कि हिकमत अमली तादाद को हरा सकती है। कि नाए आज भी फौजी अकेडमियों में पढ़ाई जाती है बतौर मिसाल डबल इन्वेलपमेंट या मुकम्मल घेराव की सबसे कामयाब हिकमत अमली के तौर पर। इस दिन रोम कांप गया था और हनीबाल तारीख का सबसे खतरनाक जर्नैल बन चुका था। सवाल अब भी तारीख के सफ़हात पर गूंजता है। जब हनीबाल ने रोम की सबसे बड़ी फौज को कुचल दिया, जब इटली के मैदान इसके नाम से लरजने लगे, तो फिर रोम क्यों न गिरा? वजह ये थी कि जंग सिर्फ मैदान जंग में नहीं जीती जाती। कि नाए की फतह के बाद हनीबाल के पास मौका था, मगर इसके पास वो सब कुछ नहीं था जो किसी सल्तनत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए ज़रूरी होता है। रोम एक शहर नहीं था, वो एक निज़ाम था। इसके इत्तेहादी शहर थे, इसके पास लामहदूद अफरादी कुव्वत थी। वो हर शिकस्त के बाद नई फौज खड़ी कर सकता था। दूसरी तरफ कारथेज सियासत में उलझा हुआ था। ताजर तबका जंग पर दौलत खर्च करने में हिचकिचा रहा था। हनीबाल को वो कमक न मिली जो इसे रोम पर आखिरी हमले के लिए चाहिए थी। हनीबाल ने इटली में 15 साल गुजार दिए। वो जीतता रहा, रोमी जर्नैल बदलते रहे, मगर रोम ने एक फैसला किया, हम मैदान में फैसला कुन जंग नहीं लड़ेंगे, हम इसे थका देंगे। रोमी जनरल क्विंटस फैबियस मैक्सिमस ने नई हिकमत अमली अपनाई। बराह रास्त मुकाबला नहीं, छापा मार जंग। रसद के रास्ते काट दो, वक्त को हथियार बना लो। और वक्त आहिस्ता आहिस्ता हनीबाल के खिलाफ होने लगा। फिर एक रोमी जर्नैल उभरा, स्किपियो अफ्रीकानस। इसने जंग को इटली से हटाकर बराह रास्त शुमाली अफ्रीका पहुंचा दिया। अब खतरा कारथेज के दरवाजे पर था। हनीबाल को वापस बुलाया गया और 202 कबले मसीह में बैटल ऑफ जमा में आखिरकार इसे शिकस्त हुई। ये शिकस्त सिर्फ एक जंग की शिकस्त नहीं थी, ये एक ख्वाब टूटना था। शिकस्त के बाद हनीबाल कारथेज में ज्यादा देर न ठहर सका। रोम इसे माफ करने को तैयार नहीं था। वो जानते थे जब तक हनीबाल जिंदा है, खतरा जिंदा है। इसे जिला वतनी इख्तियार करना पड़ी। वो मशरिक की सल्तनतों में पनाह लेता रहा, कभी सेल्यूसिड दरबार में, कभी दूसरे हुक्मरानों के यहाँ मशीर बनकर, मगर रोम का साया इसका पीछा करता रहा। आखिरकार 183 कबले मसीह जब रोमियो ने इसे गिरफ्तार करने की तैयारी की, तो इसने फैसला किया वो दुश्मन के हाथों जलील होकर नहीं मरेगा। कहा जाता है इसने जहर पी लिया। आखिरी सांस लेते वक्त इसने शायद यही सोचा होगा, मैं हार गया मगर मैं झुका नहीं। मगर हैरत अंगेज बात यह है, इसके मरने के बाद भी रोम में माएँ अपने बच्चों को डराती थी, चुप हो जाओ, हनीबाल आ रहा। सोचें, एक शख्स जो बरसों पहले मर चुका था अब भी खौफ की इलामत था। वो जिस्मानी तौर पर ख़त्म हो गया, मगर उसका नाम रोम की नफ्सियात में जिंदा रहा। हनीबाल की कहानी सिर्फ एक जनरल की कहानी नहीं है, ये इस बच्चे की कहानी है जिसने एक कसम को अपनी किस्मत बना लिया। यह हिकमत अमली की ताकत की कहानी है। ये इस सच की कहानी है कि तादाद हमेशा फैसला नहीं करती, दिमाग करता है। वो रोम को मुकम्मल तौर पर ना गिरा सका, मगर इसने दुनिया को ये सिखा दिया कि कोई भी ताकत नाकाबिल शिकस्त नहीं होती। कभी कभी जंग जीतने के लिए पहाड़ अबूर करने पड़ते हैं और कभी हार कर भी इंसान तारीख में जीत जाता है। यही है तारीख की बाज़गश्त जो हमें याद दिलाती है कि हौसला, हिकमत और यकीन नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। आप देख रहे हैं इकोज ऑफ हिस्ट्री। मिलते हैं अगली दास्तान में, जहां माजी फिर बोलेगा और हम सुनेंगे।